Hello students. So today we are going to study what to read and how to prepare for exams. Everything is whatever you need to prepare is here in this chapter. Okay, what we are going to discuss: author, characters, theme, summary, values, title, aptness, character sketch of Dr. and Mrs. Pumphrey, and language of the lesson. Why language here? Because language is very important. There are many important phrases and words which you should know. You can see the picture of the dog, and this is the mind map. Okay, you subscribe my channel English and visit my website englishgurusurata.com for so many other things very important for you. Okay, now we move on to next slide. About the author, we should know his name, we should remember the name: James Alfred White. Okay, and this book, actually he himself is a part of this lesson. Now let's start. The main three characters are dog, his name is Tricky, Mrs. Pumphrey, okay, and then Pumphrey, PHR, okay, and Mr. Harriet, the veterinary surgeon. He's very clever and diplomatic. Summary in short. This is summary in short so that you know the lesson very well. We have written the summary in short, but I am going to take summary in detail so that you understand the chapter. James Alfred Wright is as popular as James Harriet, and he was British veterinary surgeon and writer. He has written the story A Triumph of Surgery. The story starts with Mrs. Pumphrey. This is Pumphrey. Remember the spelling, okay? A rich lady. She is very rich. Takes her dog Tricky for a walk outside. A nearby veterinary doctor saw the dog and is in shock as the dog looks like a blotted sausage. This line is very important. ब्लोटेड माने फूली हुई, सॉसेज माने जैसे किसी में ठूस ठूस के भरा हो, तो वो चीज़. लेग एट ईच एंड. देन ही एडवाइज हर टू स्टॉप गिविंग हिम डाइट. वो उसको कहता है कि आप इसको खाना देना बंद कर दीजिए. बट मिसेस पम्फ्री इज़ नॉट एबल टू रिफ्यूज़ द डॉग. पर वो डॉग को मना नहीं कर पाती क्योंकि वो अपने डॉग को बहुत प्यार करती हैं, वो ओवर पैम्पर करती हैं. Soon Tricky fell ill and the doctor was called. The narrator, Mr. Harriet, somehow takes Tricky to his hospital for treatment. जैसा कि मैंने बताया, मिस्टर हैरियट बहुत ही डिप्लोमेट हैं. वो अपनी बातों में उसको ला के और कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की, सर्जरी की ज़रूरत है. और वो मिसेस पेम्फरी आफ्टर ऑल रेडी हो जाती हैं. ही टुक द डॉग अलॉन्ग एंड पुट्स अ बेड फॉर हिम. उसके लिए एक बिस्तर लगा देता है फॉर सर्जरी. For 2 days, the dog did not move much and also did not eat anything. On the third day, he wanted to go outside and there he started playing with other bigger dogs. फिर वो थोड़े दिनों बाद दूसरे कुत्ते के संग खेलना शुरू करता है. He licked the bowels of the other dog to eat the remaining food. और उसको जब खाना कम मिलता है तो उसको खाने की कदर होती है और वो चाट चाट के अपने खाने को खाता है. तो ये डॉग का जो चेंज है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यही सर्जरी है एक्चुअली में. इसी को सर्जरी के रूप में लिया गया है. हिज कंडीशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग, और वो इम्प्रूव करने लगता है. ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज मील्स विद अदर डॉग्स. आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़, जब वो मिसेस पेम्फ्री को बताता है कि उनका डॉग बहुत बढ़िया हो गया है, कि वो उसके लिए अंडे भेजना शुरू कर देती हैं, है ना. और उसको कहती है कि एनर्जी फूड बहुत ज़रूरी है रिकवरी के लिए. लेकिन सबसे मज़ेदार बात क्या है कि वो मिस्टर हैरियट वो अंडे, जो वाइन और बॉटल्स ऑफ वाइन और जो सब सामान भेजती हैं, वो डॉग को ना दे के वो खुद इंजॉय करते हैं अपने स्टाफ के साथ. तो दिस इज़ व्हाट ए ह्यूमर पार्ट. ये इसका ह्यूमर पार्ट है. तो जैसे अगर पूछा है कि लेसन में ह्यूमरस चीज़ें क्या हैं, तो आप ये बता सकते हैं. तो ये एपिसोड को आप यहाँ पे डाल सकते हैं. मिस्टर हैरियट कंज्यूम दोज ओनली. नॉट ओनली दिस, शी स्टार्टेड सेंडिंग ब्रांडी बॉटल्स. तो वाइन की बॉटल, एग्स और ब्रांडी की बॉटल्स वो उसको भेजने लगती हैं. वो सब वो कंज्यूम करते हैं खुद, है ना. और फ्यू डेज डॉक्टर फिर वाइज डिसीजन लेता है और मिसेस पम्फ्री को बुला लेता है क्योंकि वो बहुत वरिड होती हैं. मिसेस पम्फ्री बहुत हो जाती हैं खुश, और आती हैं अपनी बड़ी सी कार में और डॉग को लेके चली जाती हैं. और वो कहती हैं दिस इज़ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. और किस तरह से, तो आप यहाँ देखें कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब यहाँ पे क्या है कि विजय, डॉक्टर की विजय. कैसे विजय प्राप्त की? उसने उसको कुछ भी नहीं किया इलाज, केवल उसको खाना नहीं दिया, उसको पानी पे रखा और 3 दिन में वो ठीक हो गया. उसका वेट लॉस हुआ जिससे वो फिर से फैट, जो उसकी फैटनेस चली गई थी, और वो मस्कुलर बन गया. ओके, अब हम थीम ऑफ द स्टोरी देखते हैं. थीम ऑफ द स्टोरी क्या है? ब्लाइंड लव, है ना. विच पोजेस फ्रॉम होम वी लव द मोस्ट. तो ये है, मिस्टर पम्फ्री को कोई आइडिया नहीं है कि उनका ब्लाइंड और एक्सट्रीम लव जो है उनके डॉग के लिए, वही प्रॉब्लम है. ठीक है. एक्सेसिव लव मेड ट्रिकी सिक एंड बिकेम अ रीज़न फॉर हिज इलनेस.
It can be concluded after reading the less story that excessive learn can take the form of extreme consequences. और इसके बहुत ख़राब रिजल्ट हो सकते हैं बच्चों। इन लाइंस को आप थोड़ा याद कर लेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आंसर लॉन्ग आता है तो उसमें लिखने के लिए ये मैटर बहुत ही है कि थीम को ज़रूर मेंशन करिए। जो 5 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है उसमें ये थीम को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या टाइटल जस्टिफाइड है, इज़ द टाइटल एप्ट? तो येस, द टाइटल इज़ वेरी एप्ट बिकॉज द डॉग्स रिकवरी वॉज ट्रायम्फ ऑफ, जो डॉग की रिकवरी होती है वही ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। 2 वीक्स के अंदर ट्रिकी जो है वो रिकवर कर जाता है और ट्रांसफॉर्म एक हार्ड मसल एनिमल बन जाता है। ठीक है, सो ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है जिसमें डॉक्टर जो है वो मिसेस पेम्फ्री बहुत खुश होकर कहती है ना, और ये उनकी हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड दिखाता है टुवर्ड्स द डॉक्टर। टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी इसी वर्ड्स के संग एंड होती है ना, कि नो मेडिकल ट्रीटमेंट वाज गिवन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डॉग फ्रॉम ब्लॉटेड सूज। ये लाइन्स को आप याद कर लीजिए कि ब्लॉटेड सॉसेज से वो लीथ एंड हार्ड मसल एनिमल बन गया। तो ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि हाउ कैन यू से दैट देयर वाज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, या व्हाट इज़ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो बहुत तरीके से घूम के क्वेश्चन आता है, उसका आंसर आप ये लिख सकते हैं और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिसके लिए आपको फुल मार्क्स अवार्ड होंगे। फिर आता है ओके, टाइटल जस्टिफाइड हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं मॉरल एंड वैल्यूज़ पे। मॉरल लेसन से हम क्या सीखते हैं कि दैट एनीथिंग इवन फूड इफ़ इट इज़ गिवन मोर देन रिक्वायर्ड इट विल हार्म द बॉडी। अगर खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाता है तो बॉडी को हार्म करता है। ठीक है, एंड इफ़ इन टाइम, अगर हम समय रहते हुए प्रॉपर रूटीन को अपना लेते हैं तो हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लेसन हमको सिखाता है। और भी कुछ चीज़ें इसमें मैंने जो सोचा मैंने लिखा कि पेरेंट्स शुड नॉट बी इंडल्जेंट। पेरेंट्स को जो होता है इंडल्ज नहीं होना चाहिए, जो से ज़्यादा बच्चों की ओवर केयरिंग ओवर पेम्परिंग नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों को हार्म होता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग स्पॉइल्स, कोई भी चीज़ की अति ख़राब होती है। और एक और हम इसमें लिख सकते हैं मॉरल वैल्यू, एक्सरसाइज इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर वेल बीइंग अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिशियस फूड के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज़ वेल्थ बच्चों। तो ये मॉरल वैल्यू इस लेसन से हम सीखते हैं, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। फिर हमने शॉर्ट में इनके कैरेक्टर स्केच को भी ले लिया है, क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो इस लेसन में कुछ भी नहीं बचता जो हमें नहीं आएगा, और कहीं से कोई भी क्वेश्चन आता है हम बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। जैसे मिस्टर जेम्स हैरियट का कैरेक्टर क्या है कि बहुत कॉम्पिडेंट है। कुछ पॉइंट वाइज आप याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और आपने स्टोरी की समरी पढ़ी रखी है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो बहुत प्रैक्टिकल थे, वो बहुत ह्यूमरस थे, है ना। ह्यूमरस एपिसोड भी इसमें आप दे सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। मिसेस पेम्फ्री का कैरेक्टर बहुत फैबुलसली रिच है, बहुत रिसोर्सफुल है, पर इग्नोरेंट है, और ये नहीं जान पाती कि अपने डॉग को ओवरफीड करके बीमार कर रही है ना। और बहुत सिंपल लेडी है, इजी टू कन्विंस, उसको आसानी से कन्विंस कर लेते हैं डॉक्टर। शी इज़ वेरी ग्रेटफुल, और बाद में बहुत धन्यवाद देती है डॉक्टर का। तो बाकी आप जब भी आप कोई उनका पॉइंट दे रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, जब भी आप कोई पॉइंट दे रहे हैं उसके संग एग्जाम्पल ज़रूर लगाइए ताकि आपका पॉइंट सिद्ध हो जाए। और लास्ट में हम डॉग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि स्मॉल डॉग है ना, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर मिलता है तो वो बहुत खाना खाता है, वो ग्रीडी है। डॉग कैसा है? ग्रीडी है। चॉकलेट, केक्स और वाइन, ब्रांडी, देख रहे हैं आप उसके लिए अंडे, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, तो सबको बहुत खाता है। और मिसेस हेरियर जब उस पर पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं, उसका फूड कट कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, रिकवर करता है ना उसको। और अंत में हम देखते हैं कि वो फ्लेक्सिबल और हार्ड मसल डॉग बन जाता है ना। अंत में उसके लिए एक बात बोलेंगे कि काइंड, सेंसिबल और ग्रेटफुल डॉग है। वो भी अपनी मालकिन को देख के बहुत खुश होता है, जंप करके गोदी में आ जाता है उनकी। सेंसिबल है ना, और काइंड भी है, दूसरे एनिमल्स के संग वो बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। तो बच्चों ये है। अब आता है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लैंग्वेज पार्ट। लैंग्वेज पार्ट इस लेसन का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है जिसमें आई करके है। आई कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई इज़ द ऑथर हिमसेल्फ। इसमें ल्यूसिडिटी है और राइट मिक्सचर ऑफ रियल लाइफ एंड फिक्शन। दो मतलब उन्होंने अपनी लाइफ का भी पार्ट लिया है ना, जो ऑथर ने अपने आप, क्योंकि वो खुद भी वेटनरी सर्जन थे, लेकिन थोड़ा फिक्शन भी है, इमेजिनेशन को, दोनों को कंबाइन करके इस लेसन को लिखा गया है। जैसे ये बहुत मेटाफरिकल एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं। जैसे कार के लिए वो बोलते हैं अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीविंग ब्लैक मेटल, यानी 30 फीट की लंबी चमकती हुई काली चीज वस्तु, यानी कार। तो कार ना लिख के उन्होंने बहुत ही अच्छा एक मेटाफरिकल एक्सप्रेशन यूज़ किया है। फिर और भी इसमें कुछ फ्रेजेज हैं जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड। रंग माने क्या होता है? हाथों को आपस में जोड़ के और ट्विस्ट करना, है ना। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम अपने दोनों हाथों को आपस में मोड़ते हैं, खुश होते हैं, वो है रंग। रंग माने जैसे कपड़ा निचोड़ना, है ना, निचोड़ने को कहते हैं रंग। तो अपने हाथों को आपस में वो निचोड़ने का एक्शन करती हैं।
A few night the fine spirit was rolled around. फाइन स्पिरिट रोल अराउंड माने क्या होता है कि कोई चीज़ होना, रोल मैंने मतलब लुढ़कना, लेकिन यहाँ पर फाइन स्पिरिट रोल अराउंड यानी कि वो जो डॉग के लिए बोला गया ना कि डॉल इधर से उधर घूम रहा था, रोल कर रहा था, इतना मोटा हो गया था वो कि चल नहीं पा रहा था, ही वॉज एक्चुअली रोलिंग। तो बच्चों ये इसका लैंग्वेज पार्ट है। तो आपने देखा ये पूरा माइंड मैप इस लेसन का है, इसमें हर चीज़ आ गई है इस लेसन की, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं। अगर आप इसको अपने नोट्स बना लेंगे और साल भर इसको पढ़ते रहे और एंड में जब आप रिवीजन करेंगे इसका, तो आई एम श्योर कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे। ओके, सो इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू that you please subscribe the channel